Good morning, students of class 11th. Today, we will begin with the lesson The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan from the book Snapshots. The story is about uh, two poor Armenian boys who are fond of riding horses. Aram is 9 years old and Murad 13. They belong to the Garo-Ghlenian tribe, whose people were well known for honesty and trust. यह दो लड़कों की कहानी है। एक का नाम अरम है जो कि 9 साल का है और दूसरा मुराद है जो 13 साल का है। ये दोनों गैरो-ग्लेनियन ट्राइब जनजाति से हैं और जो कि अपने ईमानदारी और विश्वास के लिए जानी जाती है। Murad is able to steal a horse after enjoying riding for 1 month. He invites Aram to join him in horse riding. Aram मुराद जो है वो एक घोड़ा को चोरी करके लाता है क्योंकि उसको घुड़सवारी करने का बहुत शौक़ है और 1 महीने तक वो घुड़सवारी करने के बाद अरम को बुलाता है कि वो भी उसके साथ घुड़सवारी करे। Finally, they decide to return the horse to its owner as they did not want to bring bad name to their family. आखिर में वो ये तय करते हैं कि वो जो घोड़ा है उसको उसके मालिक को वापस कर देंगे क्योंकि वो अपने परिवार को एक बुरा नाम नहीं देना चाहते थे कि इसकी परिवार की बेइज्जती हो। अब हम कहानी को पढ़ते हैं तो आगे धीरे कहानी समझ में आएगी। One day back there is a good old day. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy for everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. अब क्या होता है कि एक दिन ये कहानी का नरेटर आराम है जो कि 9 साल का है। वो लिखता है कि वन डे बैक दे इन द गुड ओल्ड डेज, ये एक पुरानी बात है जब वो 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट, और दुनिया जो है बड़ी खूबसूरती से भरी हुई थी। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत थी और एक मिस्टीरियस ड्रीम थी। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. तो उसका जो कज़न है मुराद, जो कि बहुत ही शैतान टाइप का है और सनकी टाइप का है, वो उसके पास सुबह उसके घर सुबह आता है 4 बजे, उसको जगाता है। Aram, he said, I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. आराम को बुलाता है। आराम उसके जग के खिड़की के बाहर देखता है तो उसको ये विश्वास नहीं होता है कि वो क्या देख रहा है। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब वो कहता है, आराम कहता है कि ये गर्मी का दिन था और सुबह जल्दी हो गई थी। वो बाहर देखता है कि जो काफ़ी रोशनी थी और उसको ये विश्वास था कि अब वो पूरी तरह जग गया है। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. वो कहता है कि जो मुराद है एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था और आराम अपनी आंखें मलता है और उसको खोलता है। Yes, he said in Armenian, it's a horse. You're not dreaming. Make it quick if you want to ride. I know my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen in the world by mistake. वो कहता है कि वो मुराद बोलता है कि ये एक घोड़ा है और तुम सपने नहीं देख रहे हो। In the first place, my earliest memories had been memories of a horse, and my first longing had been longing to ride. This was the wonderful part. अभी आराम कहता है कि उसकी शुरू से बड़ी ख्वाहिश रहती है कि वो घोड़े की सवारी करे, और ये दूसरी बात थी कि ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. वो कहता है कि वो इतने गरीब थे कि वो घोड़ा खरीदने के पास उनके पास पैसा नहीं था। Every branch of the Garo-Ghlenian family was living in most amazing and comical poverty. और जो Garo-Ghlenian tribe थी बहुत ही गरीबी में जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और कोई ये नहीं समझ पता था कि इनके पास कहाँ से पैसा आया कि अपना ये पेट पाल पाते।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वे फेमस फॉर ऑनेस्टी। और ये कहता है कि आराम कहता है कि उनका जो ट्राइब था, जनजाति थी, वो अपने ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। कह रहा है कि 11 सेंचुरीज से अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। और ये और किसी दूसरे का लोग ये फ़ायदा नहीं उठाते थे, ना ही चोरी करते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I couldn't smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting। अब ये आराम कहता है कि वो घोड़े को देख सकता था और उसको सूंघ सकता था, और उसको सांस लेते हुए भी वो सुन सकता था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me। वो ये समझ गया कि ये जो घोड़ा है मुराद कहीं से चोरी करके लाया है, क्योंकि ये घोड़ा खरीद के तो ला नहीं सकता था। No member of the Garoghlenian family could be a thief। अब वो कहता है कि Garoghlenian family का कोई भी आदमी चोर नहीं हो सकता। I started first at my cousin and then at the horse। I stayed first at my cousin and then at the horse। वो कहता है कि हम पहले तो अपने स्टेट मतलब घूर के देखा अपने कज़न जो मुराद था उसको, और फिर घोड़े की तरफ। There was a pious stillness and humor in each of them। और कह रहा है कि देख के दोनों को देख के काफ़ी अच्छा लगा। which on the one hand delighted me and on the other frightened me। एक तरफ तो देख के उसको अच्छा लगा, खुशी हुई, और दूसरी तरफ उसको डर भी लगा। Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride। तो मुराद से पूछता है तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? तो मुराद कहता है कि अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है जल्दी से बाहर आओ। It was true then, he had stolen the horse, there was no question about it। अब ये आराम की ये बात समझ में आ गई थी कि घोड़ा चोरी करके ही लाया था। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। अब आराम अपने को सांत्वना देता है कि घोड़े की चोरी करना सिर्फ घुड़सवारी करने के लिए ये चोरी नहीं है, क्योंकि ये पैसे की चोरी नहीं है। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing। कह रहा है कि अगर हम घुड़सवारी के प्रति अगर हमें इतनी सनक है, तो ये अगर हम कहीं से घोड़ा लाके थोड़ा घुड़सवारी करते हैं तो ये चोरी नहीं कही जाएगी। It wasn't stealing, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse। ये तब तक चोरी नहीं कही जाएगी जब तक कि हम घोड़े को कहीं बेच न दें। Let me put on some clothes, I said। All right, he said, but hurry, I leaped into my clothes। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse। अब ये आराम कहता है कि हमें कपड़े पहनने दो, और जल्दी से कपड़े बदल के घोड़े पर सवार हो जाता है। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue। अब बताता है कि जो उस समय जो है वॉलनट एवेन्यू के किनारे वो रहते थे। Behind our house was a country। वहाँ पर घर के बगल में एक गांव था, जहाँ पे ऑर्चर्ड्स मतलब बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस मतलब सिंचाई करने के साधन थे, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थीं। इन लेस देन 3 minutes वी वे ऑन ऑलिव एवेन्यू। और 3 मिनट के अंदर वो ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट। और घोड़ा जो है धीरे धीरे चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और जो हवा थी बहुत ही प्यारी थी, अच्छी थी, बह रही थी, और जो घोड़ा था अब बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली बिगैन टू सिंग। और जो मुराद जो था वो गाने गाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब। ये आराम कहता है कि हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा सनकी पैदा होता है जो किसी काम के पीछे जुनून से पड़ जाता है, और ये मुराद इसी तरह का लड़का था, और जो कि उसने अपने परिवार से यह जो एक सनक थी उसने पाई थी। बिफोर हिम वॉज और अंकल खुसरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। इसके पहले इसके एक अंकल थे खुसरो, जो कि एक उनको भी एक अपनी टाइप की सनक थी। उनके पास जो था he had a powerful head of black hair and the largest mustache। उनके काले बाल थे और बहुत बड़ी मुस्टैच या मूछें थीं।
A man so furious in temper, so irritable, so impatient. बहुत ही भयानक डरावने टाइप के आदमी थे और बहुत ही impatient थे. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that the house was on fire. वो जो खुसरो थे किस तरह के सनकी थे वो बताता है. उसके बताता है आराम कहता है कि एक बार वो एक बार्बर शॉप में बैठे हुए थे, अपनी दाढ़ अपनी जो मूछें थी उसको ट्रिम करा रहे थे, कटवा रहे थे. तब उनका जो है उनका बेटा आके बोलता है कि घर में आग लग गई है. The barber said, but the boy says your house is on fire. So Khusro roared enough, it's no harm. तो उस पर कोई ध्यान खुसरो को ध्यान नहीं देता है, कहता तो अपना काम करो. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zurab. अब ये आराम लिखता है कि जो मुराद था वो खुसरो का एक नेचुरल डिसेंडेंट था. उसने जो खुसरो की जो क्वालिटीज़ थी, जो जो उसका जो गुण थे उसने वो पाया था और वो अपने पिता ज़ुराब से बिल्कुल मिलता नहीं था. That's how it was in a tribe. A man could be the father of his son's flesh, but did not mean that it was also the father of his spirit. उसके ट्राइब में ऐसा होता था कि एक लड़का अपने फादर का जो है नेचुरल डिसेंडेंट तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके जो स्वभाव है उसको भी वो पाए. The distribution of the various kinds of spirit of a tribe had been from the beginning. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors, we belonged. वो लिखता है कि वो दोनों घोड़सवारी करते हैं और जो मुराद है वो गाना गाता है. For all anybody knew, we were still in the old country. और ये जो पुराना जो गांव था वहाँ पर ये लोग थे. At last my cousin Murad said, get down, I want to ride. अब मुराद कहता है कि तुम उतर जाओ, हम घुड़सवारी करेंगे. Will you let me ride alone? I asked. तो आराम पूछता है क्या तुम हमें अकेले घुड़सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said, get down. और मुराद कहता है कि ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुमको अकेले बैठाना चाहता है कि नहीं. The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. वो कहता है कि हमने घोड़े को, मुराद कहता है कि हमने घोड़े को इतना साथ लिया है कि वो मेरी आज्ञा को मानता है. Well, I said, anyway you have with the horse I have also. कह रहा हमें भी, वो आराम कहता है कि हम भी घोड़े को साथ सकते हैं. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir run. अब ये आराम तो घोड़े से उतर जाता है तो मुराद जो है घोड़े पे सवार होके उसको अपने पैर की एड़ी से मारता है, कहता है वज़ीर दौड़ो, वज़ीर रन. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स. घोड़ा जो है अपने पिछले पैर पे खड़े हो जाता है, स्नॉटेड मतलब और हिनहिनाता है. एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड. अब उसके बाद बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है. माय कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच. और मुराद जो है वो खेतों से घोड़े को दौड़ाता हुआ जो ड्राई ग्रास थी वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे सिंचाई का नाला बना हुआ था. द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. और जो सन जो था, सूरज उग रहा था. अभी आराम बोलता है कि मेरा घोड़सवारी करने का समय है. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड ही सेड. अब वो कहता है कि उतर जाता है मुराद, कहता है आराम से तुम घोड़सवारी करो. आई लैप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव. अभी जब ये आराम घोड़े पे बैठता है तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है. किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड. मुराद कहता है कि तुम इसके अपने एड़ी से इसके जो पेट है उस पर मारो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप. कह रहा है तुम जल्दी करो क्योंकि अभी सुबह होने से पहले हमको यहाँ इसको कहीं ले जाके छिपाना पड़ेगा. आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस अगेन एंड इट रियर्ड एंड सॉर्टेड. अब वो थोड़ा पीछे जाता है, रियर्ड मतलब थोड़ा पीछे जाता है और हिनहिनाता है. देन इट बिगैन टू रन. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. अब वो दौड़ने लगता है, उसको पता चलता है कि वो क्या करे. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रैन हेलेबियन. अभी जो घोड़ा जो है खेतों में दौड़ने के बजाय
वो डिक्रान हेलेबियन नाम की जगह पे दौड़ता है, वेर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पे वो वाइन्स मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर दौड़ता है। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, अब ये घोड़ा जो है झाड़ियों के ऊपर दौड़ता है और ये आराम गिर जाता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, अब जो मुराद है वो दौड़ता हुआ सड़क पे आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, you go this way and I'll go this way, if you come upon him be kindly I'll be near। अब वो कहता है कि हम मुराद चिल्लाता है और कहता है कि हमें अब अलग अलग रास्ते में जाना होगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch। और ये आराम जो है सड़क के रास्ते जाता है और मुराद जो है इरिगेशन डिच मतलब जहाँ पे सिंचाई का जो नाला था उसके पास जाता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, अब वो वहाँ पे घोड़े को पकड़ लेता है। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, कहता है जल्दी से घोड़े पे कूद के बैठो कि सारी दुनिया अब जग गई है। what will we do, I said। well, he said, we'll either take him back और hide him until tomorrow morning। और वो मुराद कहता है कि इसको हम ले जाके कहीं हमें कल सुबह तक इसको कहीं छुपाना होगा। he didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back। अब वो आराम कहता है कि वो मुराद जो है बिल्कुल ही परेशान नहीं था, वो और आराम जानता है कि वो कहीं जाके इसको घोड़े को कहीं छिपाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। वेयर विल ही हाइड हिम, आई सेड। अब आराम पूछता है कि इसको तुम कहाँ छिपाओगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। मुराद बोलता है हमें एक जगह पता है। इट्स सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। अब आराम को ये बात समझ में आ गई थी कि घोड़सवारी जो है मुराद काफ़ी दिनों से करता आ रहा है और आज पहला दिन है कि वो आराम के पास आया है, क्योंकि जानता है कि आराम भी घोड़सवारी का शौकीन है। Who said anything about stealing a horse, he said। तो मुराद पूछता है किसने कहा कि हमने घोड़ा चुराया है। Anyhow, I said, how long ago did you being riding early morning। तो आराम पूछता है ये कितने दिन हो गए कि तुम ये घोड़े को सुबह सुबह घुड़सवारी करते हो। Not until this morning, he said। मुराद बोलता है कि हम सिर्फ आज सुबह से ही इसकी घुड़सवारी कर रहे हैं। Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say। I don't want both of us to be liars। वो कहता है और मुराद इसको समझाता है कि अगर हम जो हमारी चोरी पकड़ी जाती है तो तुम यही कहना कि हम आज सवेरे ही घोड़ा हमको मिला है, अब सुबह ही से ही इसकी घुड़सवारी कर रहे हैं, कि हमें दोनों को एक ही बात कहनी है। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। ऑल राइट, आई सेड। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian। अब वो एक ऐसे जो घोड़े को लेके एक ऐसे गांव में जाता है जहाँ का फार्मर फेटवाजियन था, वो काफ़ी नामी आदमी था। These were some oats and dry alfalfa in the barn। वहाँ पे कुछ खाने के लिए some oats थे। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely at first। It wanted to run wild, but as I told you, I have a way with the horse। I can get it to want to do anything। और मुराद कहता है कि पहले तो घोड़े को साधना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पास एक तरीका था कि हम घोड़े को अपने काबू में कर पाए। हाउ डिड यू डू इट, आई सेड। तो आराम पूछता है तुम ये कैसे किए। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। तो मुराद बोलता है कि हम घोड़े की हमें अच्छी समझ है। येस बट व्हाट्स सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। कह रहा है तुम्हें किस प्रकार की समझ है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। तो आराम बोलता है कि हम भी चाहते हैं कि घोड़े के साथ मेरी भी अच्छी समझ बन जाए। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, आई सेड। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। तो मुराद बोलता है कभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें घुड़सवारी के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरौ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। अब उस दोपहर को जो अंकल खुसरौ थे आराम के घर आते हैं थोड़ा कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। और वहाँ पे आके बैठ के सिगरेट पीते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। Then another visitor arrived, a farmer named John Bairo, an Assyrian, who out of loneliness had learned to speak Armenian। तब वहाँ पे एक और आदमी आता है जिसका नाम है, वो फार्मर है, उसका नाम है जॉन बायरो, जो असीरियन है। और वो चूँकि अकेला रहता है तो उसने आर्मीनियन भी सीख ली थी कि लोगों से बात कर सके।
My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. अब जो आराम की मदर थी उसके लिए कॉफ़ी और टबैको ले आती है और वो बैठ के वहाँ पे सिगरेट पीता है. He said, "My white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it." तो जॉन बैरो होता है, बोलता है कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था पिछले महीने चोरी हो गया था, मेरे समझ में नहीं आता वो कहाँ गया. My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" तो जो अंकल खुसरो था वो इसकी बात सुन के बहुत ही चिढ़ जाता है और कहता है कि इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, हम लोग तो अपना घर ही खो दिए हैं. और व्हाट इज़ क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो और तुम घोड़े के लिए क्या रो रहे हो. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड. तो कह रहे जॉन बैरो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए, तो तुम शहर के रहने वाले हो, तुम्हारे लिए कहना आसान है. बट वॉट ऑफ माई सरे, कह रहे हम तो एक फार्मर हैं, सरे हैं. वॉट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, और जो फार्मर है बिना घोड़े के कैसे काम करेगा, कैसे अपनी खेती करेगा. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोवर्ड. आई वॉक 10 miles to get here, जॉन बैरो सेड. तो जो अंकल खुसरो होते हैं तुम इसके कहते हैं तुम घोड़े की चिंता मत करो. तो जॉन बैरो बोलता है हम 10 मील चल के आपके पास आए हैं. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. कह रहा है मेरा जो बायां पैर है वो दर्द कर रहा है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोवर्ड. अब वो अंकल खुसरो कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है. द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. तो जो जॉन बैरो है बोलता है कि जो हमने इस घोड़े को $60 में ख़रीदा था. आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड. तो कहता है कि वो खुसरो कहता है हम पैसे पे थूकते हैं. ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमरिंग द स्क्रीन डोर. अब वो जो बैरो है वहाँ से दरवाजे को जोर से भेड़ के बाहर निकल जाता है. माई मदर एक्सप्लेन, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड. इट इज़ अ सिंपल दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन. तो कहता है कि जॉन बैरो जो है बहुत ही होम सिक है और बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस. अब वो जो फार्मर वहाँ से जॉन बैरो चला जाता है, अब आराम जो है मुराद के घर जाता है. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री. मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा है, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन. और वो जो एक रॉबिन बर्ड है वो घायल थी, तो उसका जो उसके पर को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा है जो मुराद है. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. व्हाट इज़ इट, ही सेड. वो पूछता है तुम क्यों आए हो. तो आराम बोलता है द फार्मर जॉन बैरो ऐसे, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स. तो कहता है, उसको बताता है कि जॉन बैरो उसके घर आया हुआ था और वो अपना घोड़ा चाहता है. यू हैव हैड इट अ मंथ. अब तुम इस घोड़े को 1 महीने से रखे हो. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. और अब ये आराम बोलता है कि हम चाहते हैं कि जब तक कि हम घुड़सवारी ना सीख लें तो तुम इस घोड़े को वापस ना करो. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड. तो मुराद बोलता है तुम्हें घुड़सवारी सीखने में तो 1 साल लग जाएगा. वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड. कह रहा है कि आराम बोलता है चलो हम इस घोड़े को 1 साल रख लेते हैं. माई कज़न मुराद लिफ्ट टू हिज फीट. What, he roared, are you inviting a member of the Garoglanian family to steal? तो अब एक मुराद का आत्मसम्मान जम जाता है. वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि गैरोग्लेनियन फैमिली का एक आदमी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाए. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. और मुराद कहता है कि घोड़े को हमें उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए. When I said in 6 months at least, he said. कह रहा है तो आराम बोला कि चलो 6 महीना रख लेते हैं. He threw the bird into the air. अब वो जो मुराद है चिड़िया जो थी रॉबिन बर्ड, उसको हवा में छोड़ देता है. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out out the barn of the deserted vineyard where we were riding. अब अगले 2 हफ्ते तक हर सुबह जो है मुराद और आराम जो है उसके खेतों में घुड़सवारी करने लगे. When it was my turn to ride, alone leaped over grapevines. और जो अभी आराम भी घोड़े की सवारी करने लगा. One morning, on the way to Fetvergian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow. अब एक सुबह जो है जो फेटवर्जियन का जो फार्म हाउस था उसके पास ये जॉन बैरो मिल जाता है. Who was on his way to town, जो कि शहर जा रहा था.
Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. तो मुराद बोलता है चलो हम इससे बात करते हैं. Good morning, John Barrow. My cousin Murad said to the farmer. तो मुराद बोलता है Good morning, Mr. John Barrow. The farmer studied the horse eagerly. अब वो मुराद जो फार्मर जॉन बैरो है घोड़े को बहुत ध्यान से देखता है. Good morning, son of my friends. वो कहता है कि गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग इसका जवाब देता है. He said, What is the name of your horse? तो पूछता है तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है. My heart, my cousin मुराद said in Armenian. तो वो मुराद बोलता है कि इसका नाम My heart है. A lovely name, John Barrow said, for a lovely horse. तो जॉन बैरो कहता है बड़ा ही अच्छा नाम है इतने सुंदर अच्छे घोड़े के लिए. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. अब वो जॉन बैरो बोलता है कि ये वही घोड़ा है, मेरा घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले चोरी हुआ था. May I look into his mouth? क्या हम इसके मुंह के अंदर देख सकते हैं? Of course, मुराद said. मुराद कहता है हाँ हम देख लें. The farmer looked into the mouth of the horse. अब जो फार्मर है जॉन बैरो उसका मुंह खोल के देखता है. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse. तो वो उसके दांतों को देख के पहचान जाता है. कहता है कि हम कसम खाते हैं कि ये घोड़ा मेरा ही है. I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. वो कहता है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को जानते हैं, तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है वो सब लोग जानते हैं. Yet the horse is the twin of my horse. वो कहता है ये जो घोड़ा जो है एक दूसरे घोड़े का जुड़वा है. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Good day, John Barrow, my cousin Murad said. Good day वो कह के चला जाता है. Early the following morning we took the horse to John Barrow's vineyard and put it into the barn. अब अगले दिन सवेरे क्या होता है कि जो मुराद और आराम है इस घोड़े को ले जाके जो जॉन बैरो का जो खेत है घर है वहाँ पे इसको ले जाके वहाँ ले जाते हैं. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग साउंड. और कुत्ते इनको फॉलो करते हैं. द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद. आई थॉट दे वुड बार्क. तो आराम बोलता है कि कुत्ते हमें शायद भौंकेंगे मेरे ऊपर. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो मुराद बोलता है कि हमें कुत्तों से अच्छी जान पहचान है, वो हमें मेरे ऊपर नहीं भूकेंगे. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. अब जो मुराद है अपना हाथ है घोड़े के कंधे पर रखता है और वो उसको थपथपाता है उसके कंधे पे और वो घोड़े को छोड़ के वहाँ चले जाते हैं. That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब उस दोपहर को जॉन बैरो आराम के घर आता है, उसकी माँ को दिखाता है कि यही घोड़ा मेरा चोरी हुआ था. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. अब वो जो जॉन बैरो बताता है कि हमें पता नहीं हम क्या हो गया है कि घोड़ा जो हमारा और मजबूत हो गया है. बेटर टेम्पर्ड टू. अब कह रहा है कि इसका जो बहुत ही बेटर टेम्पर्ड मतलब काफ़ी शांत हो गया है. I thank God my uncle Khosrow who was in the parlor became irritated and shouted. जो अंकल खुसरो जो घर के अंदर होते हैं ये बात सुन के बहुत ही चिढ़ जाते हैं. बोलते हैं quiet ma'am, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it. कह रहे हैं आप तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, तुम शांत रहो, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. This way we come to the end of the story, The Summer of the Beautiful White Horse. Thank you.